In my own life, in this country, and as president, I have learned that our identities do not have to be defined by putting someone else down, but can be enhanced by lifting somebody else up. And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. When in May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front, the enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam. Ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. Hello everyone. So, there is a place where some countries come to show their strength, that is United States of America. There is some place where some countries shows they are the victim of terrorism, that is the India. Some countries shows that they are not creating terrorism, that is Pakistan. Some countries which is fighting for their humanity, that is Israel. Some countries that is they say that they are not doing anything wrong by occupying the land of another country, that is Russia. So basically we are talking about United Nations. So अगर मैं आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊं तो यूनाइटेड नेशन वाज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज क्रिएटेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड. And why was there the need to create such an organization? Because during the period of World War II, 1939 to 1945, जब ये चीज़ें चल रही थी, तो there was some need that there should be some place where all the leaders of different countries come and sit together to talk about how the peace and tranquility in the world could be maintained. So basically they thought like, why shouldn't we have an organization where all the countries come together and sit and talk about that? So they created United Nation organization. अगर मैं आपको यूएन के बारे में बताऊं तो बेसिकली मोर देन 190 कंट्रीज जो है आर द मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और द कॉन्फ्रेंस held in once in a year, where all the either the prime minister or the president of any country, or their the senior members like prime minister, they could come and they could make a speech regarding their perception about the world or what is going on. So basically हम इसके बारे में और थोड़ा briefly जानेंगे. हेलो एवरीवन. तो अब हम बात डिस्क्राइब करते हैं यूनाइटेड नेशन को. तो मैंने आपको जैसे बेसिकली बताया कि इट वाज फाउंडेड इन 1941-45 विद 193 मेंबर स्टेट वर्किंग टुगेदर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस. अब हम बात करते हैं फ्रॉम वॉर्स एसेस द यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन, मतलब इसकी स्थापना कैसे हुई. तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो उस टाइम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था द लीग्स लेगेसी. उसका भी यही काम था कि हम कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करेंगे और जितने भी एग्रेशन वर्ल्ड के अंदर हो रही है दैट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, हम उसको रोकेंगे. लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल हो गई, बिकॉज जापान ने जो है वो अपना एग्रेशन दिखाया और यूएस के पोर्ट के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया. अलॉन्ग विद दैट इथोपिया के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा इन्वेजन हुआ. तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन था द लीग्स लेगेसी वो फेल हो गया. फिर वॉर टाइम विजन, फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ और उस टाइम कि वहाँ के उस टाइम एक लीडर थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एंड विंस्टन चर्चिल. उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया जिसमें इस चीज़ का उन्होंने वर्णन किया कि हम कैसे आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर सेकंड कैसे हम सारे लीडर्स को एक साथ ला के एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो कि इन सारे वॉर को रोक पाए. तो तब जाके जो है चार्टर साइन हुआ और यूनाइटेड नेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया. तो इट वॉज बेसिकली फाउंडेड इन ऑन 26 जून 1945 और उस टाइम पे 50 जो नेशंस थे उन्होंने जो है इस चार्टर को साइन किया एंड दे बिकेम द मेंबर. अब हम बात करते हैं कि आफ्टर दिस यूएन केम इनटू एग्जिस्टेंस 1945 में जब ये एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद जितने भी वॉर हुए उसमें इसका क्या योगदान रहा है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1950 में कोरियन वॉर में. तो आपको जैसे पता ही होगा कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है 1950 में भी हुआ, कोरियन वॉर हुआ और उस टाइम यूनाइटेड नेशन ने जो है वो इंटरवीन किया और रिपेल किया, मतलब नॉर्थ कोरिया को जो है साउथ कोरिया से जो है इन्वेजन करने से रोक दिया. 1956 में जो है स्यूज क्राइसिस हुआ. स्यूज क्राइसिस के बारे में आपको मैं बता दूँ, स्यूज कैनाल के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बताऊँ तो ये जो है यहाँ पे इजिप्ट के पास जो है ये सिचुएटेड है और ये कैनाल है. कैनाल का मतलब क्या हुआ, एक बहुत छोटी सी, अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो बहुत छोटा सा एक ये यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है या तो हम कह सकते हैं कि अरेबियन कंट्रीज से और इंडिया और जितने भी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको जोड़ता है. मतलब जितना भी हमारा ट्रेड होता है वो यहीं से गुजरता हुआ आता है. क्योंकि अगर आप देखें तो बीच में अगर हमें
फ्रांस से जो है थ्रू शिप कुछ अगर हमें मंगाना है इंडिया को, तो हम कैसे मंगाएंगे? हम ये वाला रूट लेंगे जो कि बहुत ही बड़ा है, इसमें कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अगर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो बेसिकली इसलिए क्या किया जाता है कि इस कैनाल के थ्रू जो है सारी चीज़ें जो है शिपमेंट होती है। और बेसिकली यहाँ पे यही फाइट होता है कि कभी भी इन दो कंट्रीज़ के बीच में, जैसे कि ये जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट या फिर किसी भी कंट्रीज़ के बीच में फाइट होती है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, इस कैनाल को रोक देते हैं और जिससे जो है शिपमेंट जो है वो रुक जाती है। तो बेसिकली 1956 में भी यही प्रॉब्लम हुआ था और यूनाइटेड नेशन ने इंटरवीन करके इस क्राइसिस को रोका था। 1971 में चाइना सीट, 1971 में ताइवान को रिप्लेस करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को जो है सिक्योरिटी काउंसिल का जो है मेंबर बनाया गया। तो बेसिकली एक विन विन सिचुएशन था फॉर चाइना। अब हम बात करते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर की। तो कोल्ड वॉर आपको जैसे पता ही हुआ, कोल्ड वॉर जो है एक वॉर हुआ था बिटवीन दैट वाज नॉट एन वॉर बट दैट वाज अ फाइट। कोल्ड वॉर के बारे में अगर मैं बताऊं तो दिस इज अ वॉर, दिस वाज नॉट अ रियल वॉर बट इट वाज अ वॉर दैट वाज फॉट बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन यूटिलाइजिंग अनदर कंट्री। सो इस टाइम पे क्या हुआ, एक्सपेंडेड पीस कीपिंग। तो बिटवीन 1988 से 2000 के बीच में सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन मोर देन डबल और पीस कीपिंग बजट इंक्रीज। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो यूनाइटेड नेशन का जो है एक अंग है जो कि पीस कीपर कहलाता है, मतलब दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी चीज़ खराब हो रही है तो ये पीस कीपर जाते हैं और उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की या उस चीज़ को संभालने की कोशिश करते हैं। नोटेबल फेलियर्स, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह ये सक्सेस जो है उनको मिलता है। जैसे सोमालिया है, बोस्निया है, रवांडा, ये अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है युद्ध होते हैं, मतलब कूप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तख्तापलट बहुत ज़्यादा होता है। तो नोटेबल फेलियर्स यहाँ पे होते हैं और इनको पीस कीपर जो है या वो रोक नहीं पाते हैं। अब यूएन की बात करें तो इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेक्रेटेरिएट है, ट्रस्टी काउंसिल है। तो जनरल असेंबली की बात करते हैं तो ये मेन डेलिब्रेट बॉडी है जहाँ पे 193 जो अभी मैंने आपको दिखाया कि जितने भी मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशन में आ रहे हैं ये जनरल असेंबली में आ रहे हैं, जहाँ पे सारे जो कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं वो अपनी बातों को रखते हैं कि क्या बजट होना चाहिए, देश कैसे चल रहा है, दुनिया कैसे चल रही है, हर एक कंट्री जो अपने बारे में बताती है कि हमें क्या प्रॉब्लम है किसी दूसरे कंट्री से। तो दिस इज अ जनरल असेंबली। सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो यहाँ पे जो है ये मतलब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात, अगर सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात करते हैं तो बेसिकली ये जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को जो है ध्यान में रख के अपना कार्य करता है। जैसे कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है और 10 जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि 2 टर्म्स के लिए होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या होता है, जैसे अगर कोई एक कंट्री, जैसे आप मान के चलिए कि चाइना ने ताइवान के ऊपर जो है अटैक किया है, तो क्या ये अटैक सही है कि नहीं है, तो ये सिक्योरिटी काउंसिल में वोट होता है और इसके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अगर उनका ये कहना है पांचों का कि ये गलत है तो मतलब बेसिकली दुनिया के सारे कंट्रीज को ये मानना पड़ेगा कि हाँ ये गलत है। तो दिस इज द वर्क ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का ये काम होता है कि दुनिया के अंदर इकोनॉमिक्स कैसे चल रही है, सोशल कॉपरेशन एक कंट्री दूसरी कंट्री से कैसे करेगी। तो बेसिकली दिस इज द वर्क ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या होता है बेसिकली कि अगर किसी 2 स्टेट्स में, जैसे कि अगर मान चलिए पाकिस्तान और इंडिया, इनमें अगर कोई भी ऐसा वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज रेजोल्यूशन जो कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं होती है, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो है वो मतलब उसका रेजोल्यूशन निकाला जाता है। जैसे कि आपने केस देखा होगा अभिनंदन का, जो कि एक हमारे पायलट थे हु लैंडेड इन पाकिस्तान। सो बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा ये कि नो ही शुड बी रिटर्न टू इंडिया। तो दिस इज द वर्क ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेक्रेटेरिएट का काम होता है कि यूएन जो ऑपरेशन कर रहा है या जो जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके ऑपरेशन चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, तो ये काम होता है सेक्रेटेरिएट का। और ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम होता है कि कोई भी ऐसी कंट्री जो कि अभी भी किसी दूसरे कंट्री के क्लच में है तो उसको हमें छुड़ाना है और उसको फ्रीडम दिलाना है, जो कि अब ये ट्रस्टी काउंसिल है वो रिवोक हो चुकी है, मतलब इसकी अब जरूरत नहीं है। अब यूएन लीडरशिप थ्रू डिकेट्स, तो आपको जैसे पता है जैसे यूएस है, इंडिया है, इनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं जो कि इनको चलाते हैं। तो ऐसी सेम टू सेम यूनाइटेड नेशन का जो है एक लीडरशिप है। तो बेसिकली फर्स्ट ट्राविक लाई थे, फिर उसके बाद डैग हैमर्स को जोल्ड थे, फिर उसके बाद यूथान थे, फिर कोफी अनन थे, और अभी जो ये यूएन के सारे कार्यकाल को संभालते हैं वो एंटोनियो गुटेरेस, और जो कि पुर्तगाल के हैं, 2017 में इलेक्टेड हुए थे और अभी भी हैं। अब पीस कीपिंग के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पीस कीपिंग जो है ये जो है एज एन आर्मी है यूनाइटेड नेशन की, द ब्लू हेलमेट इन्हें कहा जाता है। 71 पीस कीपिंग ऑपरेशन अभी तक इन लोगों ने किया है। टोटल मिशन कंडक्टेड इन 1947 फ्रॉम साइप्रस टू साउथ सुडान। 88,000 जो है इनके पास एक्टिव पर्सनल है, मतलब कि वो पर्सनल जो जिनको ये कभी भी मैदान में उतार सकते हैं, किसी भी कार्य के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं। 87.5 इनका सक्सेस रेट होता है यूएन केसेस एट पीस कंपेयर टू 50% फॉर यूनिलेटरल इंटरवेंशन। और 1988 में इनको नोबल रिकॉग्निशन भी। तो जैसे कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन है, ऐसे भी हमारे पास और भी बहुत अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिन्हें हम स्पेशलाइज्ड एजेंसी कहते हैं। जैसे यूएन है, वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूएनएचसीआर है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम क्या होता है कि जितने भी इस देश या दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी बीमारी जो है जिसकी उत्पत्ति होती है तो उसका वैक्सीनेशन तैयार करना, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराना, ये काम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। यूनिसेफ का क्या होता है कि जितने भी इस दुनिया के अंदर चिल्ड्रंस है ग्लोबली, उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, उनका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो सही है कि नहीं, उनके लिए इमरजेंसी रिलीफ उन्हें मिलता है कि नहीं, तो ये जो है यूनिसेफ देखता है और इसका हेडक्वार्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको मिल जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का काम होता है कि हम जो कोई भी फेमिन, मतलब ऐसी आपदा जहाँ पे खाने पीने को ना हो किसी कंट्री के अंदर, जैसे कि ज़्यादातर अफ्रीका के अंदर होता है, तो इसका काम होता है कि उन सारी कंट्रीज़ का देखभाल करना। यूएनएचसीआर तो ये देखभाल करता है कि रेफ्यूजी जो है उनको सही से रहने का जगह मिल रहा है कि नहीं, जैसे कि असाइलम सीकर्स को जगह मिल रहा है कि नहीं, सही से रखा जा रहा है कि नहीं, स्टेटलेस पीपल करंटली असिस्टिंग ओवर 80 मिलियन डिस्प्लेस पर्सन वर्ल्ड वाइड, जैसे कि रोहिंग्यास थे म्यांमार के। तो बेसिकली इनका ये काम होता है कि जो भी ये स्टेटलेस पर्सन है, जिनका मतलब किसी कोई भी कंट्री उनको अपना नहीं रही है, तो वो कहाँ रहे, कैसे उनको रखा जाए। तो दिस इज द वर्क ऑफ यूएनएचसीआर। अब यूएन के कुछ चैलेंजेस भी है।
चैलेंजेस कैसे हैं, जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेन, द यूएन फेसेस फंडिंग चैलेंजेस एज मेंबर स्टेट्स डिले पेमेंट। इसके जो 193 मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर जो है वो टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं, तो इनको फंड की दिक्कत हमेशा रहती है। रिफॉर्म एफर्ट्स, सेक्रेटरी जनरल गुटरेस फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट। इस देश में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन के बीच में, इसराइल एंड गाजा पट्टी पैलेस्टीन के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो सो मेनी कंट्रीज आर फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट और यूएन हमेशा ट्राई करता है कि इन सारे कॉन्फ्लिक्ट को जो है रोका जाए। एमर्जिंग इशूज़ क्या है, तो द यूएन अडेप्ट्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, यूएन जो है क्लाइमेट चेंज पे भी काम करता है, डिजिटल गवर्नेंस पे भी काम करता है, एआई पॉलिसीज़ के ऊपर भी काम करता है। तो ये सारे जो एमर्जिंग इशूज़ हैं इनको भी ये रिजॉल्व ट्राई करता है कि ये भी रिजॉल्व हो। सो बेसिकली अगर आप देखें तो यूएन का काम होता है एक तरीके से सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना, बिकॉज द वर्ल्ड इज फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल चैलेंजेस एंड द यूनाइटेड नेशंस हैज रिमेन्स टू बी द ह्यूमैनिटीज़ बेस्ट होप फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पीस कीपिंग एंड कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।